Hello students, how are you? Welcome to your online classes, 11th standard students. I hope you are quite well at your home and we hope then you should be safe with social distancing at your home, okay? Don't worry at all, be positive. Let's begin your online study for 11th, right? Listen students, you have two books. First is Hornbill, second one is a snapshot. Okay, you are having two books in 11th standard for English and grammar. And let's begin with the book Hornbill. The first chapter, The Portrait of a Lady from Hornbill by Khushwant Singh, right? Khushwant Singh, writer, denoted all the description towards his grandmother, who is very pious, religious and good lady, right? The portrait of a lady means Khushwant Singh wants to take the characteristics and virtues of his grandmother towards us by drawing the portrait, not on the canvas but on our mind. Okay, we have to keep all these characteristics of his grandmother in our mind like a portrait. We have to imagine all these characteristics, right? Let's begin. Okay, my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. She had been old and wrinkled for 20 years. Students, before starting our chapter, you must know about your grandparents' virtues. I think everybody is greatly attached with his or her grandparents, right? As well as me. Then you should respect your grandparents. Whether you are a girl or boy, it doesn't matter. Everybody should give respect and honor forever life. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी grandmother means खुशवंत सिंह की grandmother बाकी सबकी grandmother की तरह ही एक बूढ़ी महिला है. She had been old and wrinkled for 20 years. 20 years इन्होंने इसलिए कहा है कि जब 20 साल के खुशवंत सिंह थे, उन्होंने ये पोर्ट्रेट की कैरेक्टरिस्टिक पूरी लिखी है अपनी ग्रैंडमदर के बारे में. तो 20 सालों से जब से मैं अपनी ग्रैंडमदर को देख रहा हूँ, वो मेरे सामने सेम है. मतलब जैसे 20 साल पहले थी वैसे ही 20 साल के बाद भी हैं. That I had known her. जब से मैं उन्हें जानता हूँ. People said that she had once been young and pretty. यानी कि लोगों का कहना है कि जब वो अपनी यंग एज में थी तो वो बहुत ही खूबसूरत हुआ करती थी और बहुत ही प्यारी लगती थी. एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनके हस्बैंड भी हुआ करते थे. बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेकिन ये बात खुशवंत सिंह मानने को तैयार नहीं है. वो अपनी ग्रैंड मदर को बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, नो डाउट. ओके, वो उन्हें बहुत खूबसूरत मानते हैं. लेकिन जब लोगों का ये बिलीव है कि वो कुछ साल पहले बहुत यंग होती थी, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी लगती थी, उनके एक हस्बैंड हुआ करते थे, तो ये सब बातें थोड़ी सी चौंका देने वाली हैं खुशवंत सिंह के लिए एज अ ग्रैंडसन. My grandfather's portrait hung above the mantelpiece in the drawing room. अब देखिए, अभी तक तो ग्रैंड मदर के बारे में बात हो रही थी. Now we are talking about grandfather, okay, who is no more in this chapter. तो इस चैप्टर में अब ग्रैंडफादर की पोर्ट्रेट के बारे में चलिए डिस्कस करते हैं, जो कि टंगी हुई है ड्राइंग रूम के फायर प्लेस के शेल्फ के ऊपर. और जो पोर्ट्रेट ग्रैंडफादर की है उसको कैसे डिस्क्राइब किया है खुशवंत सिंह ने, देखिए. वेरी इंटरेस्टिंग नोट he has given here. He wore a big turban and loose fitting clothes. उस पोर्ट्रेट में ग्रैंडफादर ने लूज फिटिंग क्लोथ पहने हुए हैं, ढीले ढाले कपड़े पहने हुए हैं, एक पगड़ी पहनी हुई है. His long white beard covered the best part of his chest. और उनकी दाढ़ी इतनी लंबी है कि वो उनके चेस्ट के अच्छे खासे हिस्से को कवर कर रही है. And he looked at least 100 years old. यानी कि मेरे ग्रैंडफादर की डेथ हो चुकी है. जो पोर्ट्रेट टंगी हुई है मेंटल पीस के ऊपर, उसमें उनकी एज ऐसी लग रही है मानो, अब क्या मानिए देखिए,
He didn't look the sort of person who would have a wife or children. Okay, वो ऐसे पर्सन नहीं लग रहे हैं जिनकी केवल वाइफ और बच्चे ही हो। वो तो इतनी एज के लग रहे हैं, मीन्स वो इतने बूढ़े लग रहे हैं। He looked as if he could only have lots and lots of grandchildren, मानो उनके बहुत सारे grandchildren हो, इस एज ग्रुप के वो लग रहे हैं। As for my grandmother being young and pretty, और दूसरी तरफ यदि हम ये थॉट एक्सेप्ट करें कि मेरी ग्रैंडमदर बहुत ही यंग थी, बहुत ही खूबसूरत थी, तो ये जो थॉट है आपस में, ये दोनों थॉट बहुत ही रिवॉल्ट करवाने वाले हैं, ये अपने आप में चौंका देने वाले हैं। क्यों? बिकॉज आई कांट बिलीव ऑन पीपल सेइंग दैट माई ग्रैंडमदर हैड बीन अ वेरी यंग एंड ब्यूटीफुल लेडी एट दैट टाइम। ऑन द अदर हैंड माई ग्रैंडफादर वॉज नॉट अ यंग मैन, what I am seeing here in the portrait. She often told us of the game she used to play as a child. और जब मैं छोटा था तो वो मुझे मतलब बच्चों को बहुत सारी ऐसी फेबल सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी और रियल स्टोरीज सुनाती थी जो वो गेम्स खुद खेला करती थी। That seemed quite absurd, जो कि अपने आप में अजीब है कुछ, and undignified on her part, and we treated it like the fables of the prophet she used to tell us. जो भी वो कहानियाँ, जो भी वो किस्से हमें सुनाती, हम उन सारे किस्सों को कंपेयर करते प्रॉफिट की फेबल से, उनकी स्टोरीज से। She had always been short and fat and slightly bent. अब देखिए फर्स्ट पैरा I have completed just now, ठीक है। फर्स्ट पैरा में आपने क्या पढ़ा? About grandmother and ग्रैंडफादर। ओके, अब देखिए हम पढ़ते हैं ग्रैंडमदर की फिजिकल अपीयरेंस के बारे में, उनकी फिजिकल ब्यूटी के बारे में, वो कैसी दिखती थी। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो शुरू से ही छोटे कद की रही, थोड़ी सी बल्की रही, मतलब मोटी रही, और स्लाइटली बेंट मीन्स थोड़ी सी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज अ क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। उनका फेस कैसा था? रिंकल्स यानी कि झुर्रियों वाला, उनका फेस झुर्रियों से भरा हुआ था, यानी कि एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक उनका फेस रिंकल्स से भरपूर था। नो, वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, और हम इस बात में पूरे निश्चित थे कि जब से हम उन्हें जानते हैं, जान रहे हैं, उनकी एज में मानो स्टेबिलिटी थी। वो 20 सालों में उनकी एज में, उनके फिजिकल अपीयरेंस में कोई भी चेंज नहीं हुआ। So terribly old that she couldn't have grown older, यानी कि 20 सालों में मुझे एक पल भी नहीं लगा कि वो एक दिन भी बूढ़ी हुई हैं। And had stayed at the same age for 20 years, और मानो ऐसा लगा कि 20 सालों तक उनकी एज कहीं ठहर सी गई, कहीं फिक्स हो गई उनकी एज। And she could never have been pretty, but she was always beautiful. अगर मैं ये थॉट एक्सेप्ट ना करूं कि वो बहुत ही प्यारी लगती थी अपनी यंग एज में, लेकिन मैं इस बात पे भरोसा कर सकता हूं कि वो मन से बहुत खूबसूरत हैं। She rested on her hand on the waist. अब देखिए कैसे, देखिए फिजिकल अपीयरेंस के साथ साथ आपको ये जानना भी जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, देन हाउ शी वॉक्ड एट होम। ओके, हाउ शी वॉन्डर्ड एट होम, कैसे वो चलती थी पूरे घर में। ओके, शी वॉज नॉट एबल टू वॉक प्रॉपरली विदाउट अ स्टिक, तो वो अपना एक हाथ तो कमर पर रखती थी अपनी स्टिक को सपोर्ट देने के लिए, और उनका दूसरा हाथ जो है, ठीक है, कभी कभी अगर वो वेस्ट पे अपना हाथ रखती थी विद अ स्टिक, एंड अदर हैंड वॉज बिजी टू टेल द बीट्स। ओके, बीट्स देखिए कैसे। She hobbled about the house in spotless white with one hand resting on her waist. वो hobbled means घर में घूमा करती थी spotless white ड्रेस में, उनकी ड्रेस पूरी तरह से सफ़ेद रहती थी बिना किसी दाग धब्बे के, और वो घूमती थी, अपना एक हाथ कमर पे होता था उनका और दूसरा हाथ होता था अपनी रोजरी को जपने में। रोजरी मीन्स होता है ROSARY मीन्स जप माला, वो जप माला को जपती रहती थी। She was very religious lady. Her silver locks were scattered untidily over her pale puckered face, और उनका जो चेहरा था वो बिल्कुल वाइट था, वाइट ड्रेस, वाइट फेस, वाइट लॉक्स, इसलिए उनकी लटों को, बालों की लटों को बोला गया है सिल्वर लॉक्स। मीन्स चांदी की तरह जो लगती थी उनकी लटें, वो उनके चेहरे पर बिखरी रहती थी।
and her lips constantly moved in audible prayer, और उनके जो होठ थे वो हमेशा हिलते रहते थे कुछ ऐसी प्रेयर्स के साथ, ऐसी प्रार्थनाओं के साथ जो सामने वाला व्यक्ति सुन ना सके। मन ही मन वो प्रेयर्स में डूबी रहती थी। शी वॉज ग्रेटली इन्वॉल्व टू रिसाइट द प्रेयर्स बट दोज प्रेयर्स वर इनऑडिबल बाय एनीवन। Yes, she was beautiful, तो इसमें कोई शक नहीं है। एंड डाउटेडली शी हैड बीन वेरी ब्यूटीफुल। और इनका कंपैरिजन देखिए कैसे किया गया है। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन। खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर की ब्यूटी को विंटर लैंडस्केप से कंपेयर किया है। जिस तरह से विंटर लैंडस्केप सर्दियों में माउंटेन्स और हिल्स का जो दृश्य है वो कंपेयर करने लायक नहीं होता, मीन्स उसके लिए स्पीचलेस होते हैं सभी। बिकॉज ऑन those mountains and hills in winter the contentment and the peace were and are also there। यानी कि ऐसे माउंटेन्स पर, ऐसे हिल्स पर जो सर्दियों में बर्फ से ढके हुए पहाड़ होते हैं वो इस तरह से खूबसूरत लगते हैं और मानो लगता है कि उस पे सुंदरता और शांति ने अपना ठहराव कर दिया है। तो इसलिए दादी माँ की सुंदरता को कंपेयर किया गया है वाइट सेरेनिटी से, वाइट सेरेनिटी ऑफ विंटर लैंडस्केप, और इसे हम भूल नहीं सकते, विच वी कांट फॉरगेट। Okay, students, these two paragraphs of the physical appearance and the beauty of grandmother, how she looked like and how she had been very beautiful, how she had been stable at her age for 20 years, what Khushwant Singh denoted here, and after that the different phases of relationship between Khushwant Singh and grandmother have been described here. Very interesting phases, innovative phases, what you need to follow and understand. Okay, bye students.